ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہو بچوں؟ کائنات کیسے ہو؟ ویکینڈ کیسا گزرا؟ اور اسٹڈی وغیرہ کی چیز کی کون نہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ اچھے سے پڑھ رہے ہیں. اور پورٹ فولیو پہ کام کر رہے ہو بچوں؟ کہاں تک پہنچا آپ لوگوں کا پورٹ فولیو؟ میں نے پوچھا پورٹ فولیو کے اوپر کام کر رہے ہو آپ لوگ؟ وعلیکم السلام. جی میرا کیسے ہو؟ گڈ. صرف کائنات کا بن گیا یا اور لوگوں کا بھی بنا ہے؟ بس جلدی ہمارے جو ہے نا لونس انشاءاللہ پریپیئر ہو رہے ہیں. آپ لوگوں کو جلدی کال کر لیں گے. اور جب بھی آپ لوگوں نے آنا ہے اپنا پورٹ فولیو ساتھ لے کر آنا ہے، کیونکہ میں نے 1-2 دن دینے ہیں چیک کرنے کے لیے. اس کے بعد پھر میں نے کسی کا چیک نہیں کرنا. اچھا تو بچوں کوئی مجھے بتائے گا لاسٹ ویک ہم لوگوں نے کیا پڑھا تھا؟ وعلیکم السلام انیزا، کیسے ہو؟
کوئی بتائے مجھے کہ ہم نے لاسٹ ویک پہ کیا پڑھا تھا اور اس ویک ہمارا کیا لیکچر تھا، آگے ہم نے کیا پڑھنا تھا. گڈ مارننگ انیتا جی. کارڈک ڈیزیز پڑھ رہے تھے. کارڈک ڈیزیز ہم نے کہاں تک پڑھا تھا؟ ہم آہستہ آہستہ چلتے ہیں اس طرح. جی میرے اچھا، ہم لوگوں نے لاسٹ ویک جو تھا نا وہ پڑھا تھا کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز اینڈ ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے، کہ کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز کیسے ہوتا ہے، کس اسٹیج میں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے. کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز آپ کو بتایا تھا کہ جب بیبی ڈلیور ہوتا ہے تو اس کے بعد بیسیکلی جو چینجز ہوتی ہیں وہ اسی وقت ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اڈلٹ ہوڈ والی جو سرکولیشن کی چینجز ہوتی ہیں وہ اسی وقت ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں. ہم صرف اس وقت، اور بھی کنجینیٹل ابنارملٹیز ہوتی ہیں لیکن اس وقت جو ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں اونلی کارڈیاک کو. رائٹ، تو کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کارڈیک میں کیا کیا ابنارملٹیز آتی ہیں اور کیسے آتی ہیں. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ جو جب پلیسنٹا جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، ہم کٹ کر دیتے ہیں تو سرکولیٹری سسٹم، اڈلٹ سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اور جب پلیسنٹا کو سپریٹ کرنے کے بعد جو ہے لنگس بیبی کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس میں جو شنٹس ہوتے ہیں وہ کلوز ہو جاتے ہیں. آرٹریوسس تھا جس میں ویروسس تھا اور فورامنا ویل تھا. ٹھیک ہے، تو ان میں سے جو کلوز نہیں ہوتے ہیں ان کی وجہ سے ہی پھر اگین ابنارملٹیز آتی ہیں اور وہ کنجینیٹل کارڈیاک فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہیں بیبی کو. رائٹ، تو اس میں ہم نے کلاسیفیکیشن بھی اس کی دیکھی تھی کہ اس کی کلاسیفیکیشن آگے کتنی ہے. اس میں تھا اے سائنوٹک تھا اور سائنوٹک کا. اے سائنوٹک میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو ہے پلمنری بلڈ فلو جو ہوتا ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے. سیکنڈلی اس میں تھا obstruction ہو جاتی ہے بلڈ فلو کی. ٹھیک ہے، اور آگے پھر اس کی فردر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی آگے فردر ڈیٹیل ہے. اب اور سائنوٹک میں ہم نے پڑھا تھا کہ پلمنری بلڈ فلو جو ہوتا ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے اور مکس بلڈ فلو ہوتا ہے. اور آگے اس کی جو ہے ڈیکریز پلمنری بلڈ فلو کی وجہ سے جو ہم آگے پڑھیں گے لائک جیسے ٹیٹرولوجی آف دا پیلٹ ہے، ٹریکسپیڈیٹریڈیا ہے اور یہ ورڈس جو ہے یہ ہم نیکسٹ اس کو ڈسکس کریں گے. پھر اس کے بعد یہ کچھ لیجنس تھے جو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ پڑھ لیجیے گا کہ اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں جو کہ بعض اوقات بٹ ریئر ہے کہ یہ ایم سی کیوز میں آ جاتا ہے. پھر ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اے سائنوٹک کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز. سائنوٹک کنجینیٹل ہارٹ ڈیزیز میں ہم نے فردر اس کی پیتھو کو ڈسکس کیا تھا کہ جب بلڈ جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے اور وہ الاؤ کرتا ہے کمیونیکیشن کو، نارمل کمیونیکیشن کو بٹوین رائٹ ایٹریم اینڈ لیفٹ ایٹریم کے درمیان. رائٹ، اور جب لیفٹ ایٹریم سے بلڈ جو ہے فلو ہوتا ہے رائٹ ایٹریم کی طرف تو ڈیفینیٹ لیفٹ ایٹریم کا جو پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور رائٹ ایٹریم کا پریشر جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح بلڈ کا والیوم بھی زیادہ ہو جاتا ہے رائٹ ایٹریم میں. ٹھیک ہے، تو جب بلڈ کا والیوم رائٹ ایٹریم میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے. پھر رائٹ وینٹریکل سے بلڈ فلو پلمنری سرکولیشن میں جاتا ہے جس کی وجہ سے پلمنری جو سرکولیٹری سسٹم ہے اس کو اوورلی کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، مین اس کے جو ایکٹیونیس اس کی ہوتی ہے اس کو زیادہ ہارڈلی کام کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اوور لوڈ اس میں ہو رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر تو وہ نارملی ہینڈل کر لے اس بلڈ والیوم کو تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کا جو ہے اس کی وجہ سے کلینکلی پیشنٹ جو ہے ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے، ہائپر ٹینشن ہو جاتی ہے، رائٹ کارڈیک فیلئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ میں ہوتا ہے. سمجھ آ گئی تھی جہاں تک؟ آگے تھا ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ. ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ یہ تھا کہ میں اس لیے اب جلدی پڑھ رہی ہوں کیونکہ ہم آلریڈی اس کو ڈسکس کر چکے ہوں گے. ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ جو تھا وہ تھا این اوپننگ ان دا ایٹریل سیپٹم. یہ سیپٹم میں ہم نے پڑھا تھا کہ سیپٹم کے اندر جو انٹرا سیپٹم کہہ لو یا سیپٹم کہہ لو جو فورامن اویل ہوتا ہے مینس وہ جو
होल था वो ओपन रहता है, ठीक है। An atrial septal defect allow oxygenated blood to pass from the left atrium through the opening in the septum and mixed with the unoxygenated blood in the right atrium. Last जो थी उसमें स्लाइड उसमें मैंने आपको बताया कि जब वो नॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ब्लड लेफ्ट से राइट की तरफ आता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है विद अनऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ वो मिक्स होता है, ठीक है। तो उस दौरान में जब वो पार्टीशनिंग हो रही होती है, उसका जो प्रोसेस हो रहा था वो अक्कर कम्प्लीटली नहीं होता, जिसकी वजह से ओपनिंग रह जाती है और ये जो है 4 to 10% ऑफ इन्फेंट्स में होती है, ठीक है। और उसके इफेक्ट्स थे नीचे, व्हेन ब्लड पासिस थ्रू द ASD from the left atrium to right atrium large volume of blood then normal, जो मैंने आप लोगों को पूछा था कि अगर नॉर्मली हैंडल करे तो इट्स ओके, इफ नॉट देन पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी कंजेशन हो जाती है। सुन रहे हो सब जी? तो ये था एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें जो आगे हमारी सारी डिस्कशन होनी है ना, तो जो टाइप्स की वो है ये सेप्टम सेकंडम, सेप्टम प्रीमियम, फोरामेन ओवेल, ओके। और मेन अगर हम इसकी जो है ना एट्रियल की इसकी टाइप्स आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन इसकी अगर मेन टाइप्स देखी जाए तो वो सेप्टम सेकंडम है, सेप्टम प्राइमम है और एक साइनस वेनोसिस है, ठीक है। और साइनस वेनोसिस के बारे में आगे चल के मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइनस वेनोसिस नहीं दिखाया गया। इसी पिक्चर को फिर आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम टाइप्स पे पहुंचेंगे। ये था कि इफ द ESD से जो हम ऑलरेडी ये सारी डिस्कस कर चुके हैं। ये है फोरामेन ओवेल। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हमेशा जो है ये एट्रियल में होता है, इस वजह से हम इसको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। और ये होल है जो पिक में दिखाया गया है, ठीक है। अब आए टाइप्स ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑस्टियम सेकंडम। वो पीछे पिक में मैंने आप लोगों को बताया, ऑस्टियम सेकंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है। स्मॉल जो है प्रोमिनेंट इसकी टाइप्स है जो है, इसको कहते हैं मोस्ट ये कॉमन टाइप है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, कंप्राइजेस 6 to 10% ऑफ ऑल कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस इसकी वजह से होते हैं, ठीक है। ओपनिंग नियर द सेंटर ऑफ द सेप्टम। इसकी जो इसमें जो ऑस्टियम सेकंडम में ओपनिंग है, ये जो है ना ये सेप्टम के बहुत ही सेंटर के करीब होती है। द सेकंडम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यूजुअली अराइजेस from the enlarged foramen ovale and inadequate growth of the septum secundum or excessive absorption of the septum option। अब मैं आपको वहीं लेके जाती हूँ उसी पिक के ऊपर। जी ये देखो, ये सेप्टम सेकंडम, ये यहाँ पे इसका होल होगा, ठीक है। ये नियर टू सेंटर, देख रहे हैं, नियर टू सेंटर, लेकिन ये इसको ज़्यादा कर सकता है, ये होल ज़्यादा भी हो सकता है। जब ज़्यादा होगा तो ये सेप्टम प्रीमियम को भी अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा, यानी कि उस तक भी ये पहुँचेगा, ठीक है। समझ आ रही है ना? मैं इसके साथ साथ पिक्स आप लोगों को जो है वो दिखाती हूँ, क्योंकि उतना बंदे को वो स्टडी से पता नहीं चलता जितना डेमो से पता चलता है, जितना ओपनली जो पिक्चर्स होती हैं उनसे ज़्यादा पता चलता है। अभी मैं कोशिश करूँगी कि कुछ जो सही वाली अच्छी वाली मैं ढूंढ रही हूँ कि पिक्चर अकॉर्डिंगली टाइप्स के वो मुझे मिल जाएँ और मैं इनके साथ अटैच कर दूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए इसकी। भाई कैसी समझ आ गई ना इसकी ओपनिंग की,
कि ये 6 to 10% जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज के साथ होते हैं ना, उनमें ये जो कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होती है एट्रियल की, वो मोस्टली सिकंडम की होती है, ठीक है, और ये नियर टू सेंटर होता है। उसके बाद आ गया पेटेंट फोरामेना वेल। पेटेंट फोरामेना वेल आल्सो इज टाइप ऑफ एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये एक स्मॉल चैनल है दैट हैज सम हेमोडायनामिक कॉन्सिक्वेंस। तो ये जो मैंने फोरामेना वेल का बताया था कि ये फोरामेना वेल पीछे मैंने आप लोगों को दिखाया भी है कि उसमें जो है सुराख रह जाता है, जो बंद नहीं होता है, ये उसकी ये भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की ये एक टाइप है। और ये हम इसको कैसे देखते हैं, ऑन इकोकार्डियोग्राफी देयर में बी नोट एनी शंटिंग, क्योंकि वो फोरामेना वेल है ना, उसका जो सुराख है वो इतना जल्दी जब इको हो रही होती है ना, तो इतना क्लोजली नज़र नहीं आता। जब तक कि उसको देखने के लिए सर्जन जो है वो हमेशा पेशेंट को कहता है कि कफ करो। अगर बेबी है तो वो उसका थपकी लगाते हैं या बेबी के कुछ मुंह में कोई चीज़ देते हैं ताकि बेबी जो है कफ करे, तो उससे उसका जो वो होल है तो वो पता चले वो कितने mm का है, राइट। हीमोडायनामिक जो यहाँ बताया गया, हीमोडायनामिक का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ एक्टोपिक बीट। एक्टोपिक, अब सोच रहे होंगे एक्टोपिक बीट कौन सी होती है, ठीक है। एक्टोपिक बीट होती है जो इनके रेगुलर ना हो, राइट। अब आगे हम चलते हैं। इसकी पिक में मैं आप लोगों को वो जो पीछे है वो ऑलरेडी आप लोग देख चुके हो फोरामेना वेल की, शायद फिर दिखा देती हूँ। ये है, ये फोरामेना वेल, राइट। सेप्टम सिकंडम साइडों पे वॉल्स और ये फोरामेना वेल। अब आ गया पेटेंट फोरामेना वेल। यहाँ देख सकते हैं, ये देखें, ये फोरामेना वेल। आ गया ओस्टियम, पीछे हमने डिस्कस किया था ना कि स्कंडम, प्राइमम और जो है वो साइनस वेनोसस, ये मेन टाइप्स हैं। तो अब आई ओस्टियम प्राइमम एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। ये लोअर एरिया की तरफ है, ओपनिंग एट द लोअर एंड ऑफ द सेप्टम, right? A defect in the ostium primum को occasionally classified करते हैं atrial septal defect, but it is more commonly classified atrioventricular. You know why? क्योंकि ये यहाँ देखो, उसने कहा कि ये लोअर एंड ऑफ द सेप्टम है, तो जब लोअर एंड ऑफ द सेप्टम होगा, अगर वहाँ पे होल होगा तो इट मीन्स कि वो नीचे वेंट्रिकल को भी अपनी लपेट में ले लेगा, कि वेंट्रिकल को भी साथ ओपन हो सकता है वेंट्रिकल भी। तो इस वजह से उसको एट्रियोवेंट्रिकुलर भी हम कह सकते हैं, इस तरह भी क्लासिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओस्टियम प्राइमम डिफेक्ट आर लेस कॉमन देन ओस्टियम सिकंडम, यानी कि ओस्टियम सिकंडम जो है, पहले भी हमने इसका जिक्र किया कि जो ओस्टियम सिकंडम है ये मोर इम्पोर्टेंट है देन प्राइमम। प्राइमम में बहुत रेयरली जो है वो देखा गया है कि उसमें डिफेक्ट होता है, मोस्टली सिकंडम में ही डिफेक्ट होता है, क्योंकि दरमियान का एरिया होता है ना जहाँ पे फोरामेना वेल होता है, इस वजह से ये ज़्यादा ग्रेजुअली देखा गया है। साइनस वेनोसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, जी कोई बताएगा? अभी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि साइनस वेनोसस क्या है, इसके बारे में किसी को थोड़ा बहुत इल्म है कि ये कौन सी टाइप है, जल्दी से मुझे कोई बताए। मैं 2 मिनट देती हूँ, कहीं से देख के बता दूँ।
बच्चों सुन रहे हो ना आप लोग? प्रेजेंट हो? अच्छा, साइनस वेनोसस एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट है, ओपनिंग नियर द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के बारे में पता है आपको क्या है? ये तो बता दो। सुपीरियर वेना केवा क्या है? अभी जो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो ना, इनकी मैंने स्पेशल मार्किंग लिखनी है। सुपीरियर वेना केवा है जो बॉडी के अपर पार्ट से ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है, और इन्फीरियर वेना केवा जैसे मैंने बताया था कि ये लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी जो है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आता है, और ये दोनों से ब्लड जो है वो कलेक्ट होता है राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जी, वंशा ने बताया जहाँ से राइट एट्रियम में ब्लड आता है। गुड। वही सुपीरियर वेना केवा जो है अपर साइड ऑफ द बॉडी, इसमें ये ब्लड को लेकर आता है, राइट। और जब इसमें जो है ओपनिंग होती है नियर द जंक्शन ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, वहाँ पे जब इसकी ओपनिंग होगी तो उस ओपनिंग को राइट एट्रियम होगी, राइट एट्रियम में, ठीक है, लेकिन होगी जंक्शन ऑफ द, जहाँ पे जंक्शन है सुपीरियर और एओर्टा वहीं से ही गुजरता है, और साथ ही लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वहाँ पे ओपनिंग होती है, क्योंकि वहाँ पे भी ये ऑक्सीजनेट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है मिक्स करता है। And it is a failure of development of the embryology, यानी कि इसकी embryology है component that contribute to the atrial septal compressive frequency associated with the heterotaxis syndrome। इसमें जो है जब ये फेलियर होता है तो इसमें एम्ब्रियोलॉजी है अभी स्टार्ट जब होता है ना, तो उसी वक्त ही इसकी डेवलपमेंट जो है वो नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मलिटी की तरफ चली जाती है। मेन के जब बच्चा पैदा होता है या तो वो हाइट में छोटा होगा, वेट में कम होगा, इनके उसमें इस तरह की एबनॉर्मलिटीज होंगी, ठीक है। और मेन के ये उन्होंने साथ दिया हेटेरोटॉक्सिस सिंड्रोम, इसका क्या मतलब है, इसमें जो है ना इंटरनल ऑर्गन जो होते हैं ना वो नॉर्मल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का बाजू का तो हाइट छोटी होती है, वेट में कम होता है, लेकिन उसमें जो है उसके अब नॉर्मल मेन क्या उसके ऑर्गन अंदर से जो है ना वो भी अब नॉर्मल हो जाते हैं। मेन इसकी चेस्ट का जो डायग्राम है उसको कोई ऐसा बच्चा मैं यहाँ पे इसके लगाऊंगी ताकि आप लोगों को पता चल जाए। डायग्राम जो बच्चे का है ना वो चेस्ट का टेढ़ा मेढ़ा सा होगा। चेस्ट की मेन शेप जैसे एक नॉर्मल लोगों की होती है ना, वो इस तरह नहीं होगी, और उसके अंदर सारे ऑर्गन जो हैं वो डिस्प्लेस होंगे प्रॉपर, ऐसे लगेगा कि जैसे वो अपनी जगह पे नहीं है, ठीक है। उसकी भी मैं पिक आप लोगों को जो है वो शेयर करूँगी। अब आगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, राइट। इसमें अगर इसमें पेशेंट की जो है हम हिस्ट्री लें तो उसमें अगर पेशेंट से हम पूछें उसके नॉर्मेलिटीज़ के बारे में कि उसके साइन सिम्टम उसको क्या लगते हैं, तो वो एसिम्प्टोमेटिक्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम फिर उसको ऑस्कल्टेट करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें रिलेटिवली सिलेंडर बॉडी बिल्ड एटिपिकल होता है। मीन के पेशेंट की जो है ना वो एक शेप होती है ना, तो इसमें डिफरेंट तरह की शेप्स होती हैं पेशेंट की। इसमें फीमेल्स की अगर आप लोग इसको रिसर्च करोगे ना, इसमें ये वाला बॉडी बिल्ड टिपिकल बॉडी बिल्ड, तो आप लोगों को आप पिक देखना है इसकी कि वो किस तरह की होती है। सॉरी, इसमें वाइडली स्प्लिट एंड फिक्स S2 एंड सिस्टोलिक एजेक्शन मर्मर करते हैं।
स्प्लिट एंड फिक्स टू पता है इसको क्यों कहते हैं? इसमें जो हार्ट बीट होती है ना पेशेंट की, उसमें लाइक अगर कभी किसी ने कार्डियक यूनिट में आप लोगों को करने का मौका कभी मिला हो, आई डोंट नो कि किसी ने चेस्ट पेशेंट की जो है कार्डियक में यूनिट में ऑस्कल्टेट की हो, लेकिन कभी मौका मिले तो उसमें ना हार्ट बीट में ना लुप डुप की आवाज़ आती है। अब जो फर्स्ट बीट है मीन के जो इंस्पायरेशन है वो एक्सपायरेशन के साथ वेरी नहीं करती, डिफरेंट होती है। इस वजह से उसको स्प्लिट फिक्स एस्टो कहते हैं। और सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर होता है मीन उसमें जैसे ट्रैफिक जैम में देखा हो कभी आप लोगों ने, हर बंदा ही साउंड बजा रहा होता है, तो कभी आवाज़ें सुनी हैं इस तरह की रियल में? सेम इसी तरह कह लो कि कार्डियक यूनिट की जो सर्कुलेशन हो रही होती है उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, कुछ वेसल्स की स्टेनोसिस हो जाती है और क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड जो है प्रॉपरली के सर्कुलेट नहीं जा रहा था, तो उस वक्त उसमें शांशंग की आवाज़ आती है, मशीनरी की तरह की आवाज़ आती है जिसको हम मरमर बोलते हैं। ठीक है, कभी आप लोगों को मौका मिलेगा ना तो आप इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर कीजिएगा। उसके बाद classic auscultatory finding AST are not present unless the shunt is reasonably large. मीन के जब तक उसका शंट जो है वो जो है जो हमने कहा कि ब्रॉडली जो है इनलार्ज ना हो, उस वक्त तक हम उसको प्रॉपरली ऑस्कल्टेट करेंगे तो प्रॉपर पता नहीं चलता। ठीक है, अब आ गया एक्सरे स्टडी। एक्सरे को अगर हम एक्सरे करवाएं पेशेंट का, उसमें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम इसमें जो है ना कार्डियक का हम लेटरल नहीं लेते, एक्सरे पीएवीओ में लेते हैं, हम इनके इस तरह स्टैंडिंग में लेते हैं। तो इसमें हम कैसे देख सकते हैं? ये देखो, पेशेंट का हार्ट देखा बेबी का, टू मच वीक, लेकिन उसमें राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम दिखाई दे रहा है। इसमें कार्डियम गैली होती है विद इनलार्जमेंट ऑफ द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, जो मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से लेकर देखो यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद आ गया प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी सेगमेंट, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जिसमें देखी जाती है, अगर ये डोपलेटर से हो, ये कलर में भी हो, तब भी आप आराम से इसको देख सकते हैं। Pulmonary vascular marking are seen when the shunt is significant. सेकेंडली, इसके जो एक्सरे के अलावा हम इसमें जो है वो इकोकार्डियोग्राफी करवाते हैं, एंजियोग्राफी भी करवाते हैं, ट्रांसपेरेंट इकोग्राफी भी करवाते हैं। इसको एक शंट को देखने के लिए डिफरेंट तरह की स्टडीज होती हैं। ठीक है, और मैंने इसमें इस वजह से नहीं पीपीटी में सारा कुछ डाला। आप जो एजेंशियल पीडियाट्रिक की बुक है ना, उसमें वो उसके लिखा हुआ एएसटी का एक पूरा पेज है, पीएसटी का पूरा पेज है, उसके अंदर एक दफ़ा वहाँ से ना ये एक्सरे, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रांसपेरेंट ग्राफी आप लोग वहाँ से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। बाज़ इसकी जो डायग्नोसिस है वो एमसीक्यूज़ में आ जाती है। आते हैं हम मैनेजमेंट की तरफ, राइट। मुझे ये बताएं कि कार्डियक यूनिट में आप लोगों में से किस किस ने जो है वो क्लिनिकल पे किस किस की ड्यूटी लेती है आपकी क्लास में से? हमारे शालामार में कार्डियक यूनिट में किसने किया? कायनात ने किया? जी बच्चों, अच्छा जी, कौन कौन ऑनलाइन है पहले तो मैं देखूं। सिर्फ 12 लोग हैं, टू बैड। अच्छा, लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है?
कुतुब लाने की है जी, कुतुब लाने मोस्टली वहाँ पे मेडिकल यूनिट में कार्डियक के लिए किस किस्म की ट्रीटमेंट देते हैं वो, ये तो आपने ऑब्जर्व किया किसी ने? लेकिन अगर किसी आप लोगों ने तो अडल्ट में ड्यूटी की है ना, पेट्स में तो नहीं की है आप लोगों ने, लेकिन वो पेट्स में अगर किसी पेशेंट का, क्योंकि ये जो कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी है ना, पता है कि जब ये हील भी हो जाती है तो ये 40-45 की एज में जाके ये दोबारा से फिर ये प्रॉब्लम शुरू कर देती है। मोस्ट ऑफ ऑल ये स्टडी में एक दिन एक लिटरेचर पढ़ रही थी कि जिसमें जो बच्चे होते हैं ना, जिन बच्चों को मोस्टली बचपन में ये प्रॉब्लम कोई कार्डियक का रहा होता है, हम देखते हैं ना कि किसी पेशेंट को जो है हार्ट अटैक हो गया तो वो सडन उसकी डेथ हो गई। होता है कि उनमें पहले प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ऐसा होता है कि उनमें बचपन में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होती है, इसलिए उन बच्चों उन अडल्ट लोगों का हार्ट जल्दी इफेक्टिव होता है। तो वो यही पेशेंट जो होते हैं 40-45 के बाद जो मोस्टली एडमिट होते हैं ना, कभी उन लोगों से इससे हिस्ट्री ज़रूर लेना उन लोगों से कि क्या बचपन में आपको कोई इस तरह की कोई प्रॉब्लम हुई थी। मतलब मैं आज ही इसके बारे में जो है ना वो देख रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे कि ये बचपन में जिन लोगों को कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटी हुई होती है ना, वो 40-45 के बाद अक्सर ऑलमोस्ट आप कह लो कि 60% वही लोग हैं जो यानी कि इस एज में फिर से उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये उनका बाकी 40 ईयर्स 45 ईयर्स जो है वो अच्छे गुजर जाते हैं बचपन के बाद, फिर इस एज में आके ओल्डर एज में आके फिर उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो एनीवे अब हम देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं पेशेंट के लिए। उसमें एक्सरसाइज रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद जो है प्रोफिलैक्सिस देते हैं फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इंडिकेशन इन पेशेंट विद प्राइमम एएसडी, राइट। आपको पता है ये जो है क्या एंडोकार्डाइटिस इनइफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? ये कहीं और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो पढ़ी है ना सेकंड ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा है इसको, इनफेक्टिव एंडोकार्डाइटिस इंडिकेटेड, किसी ने सुना हो? ये एक्चुअल में इसको जो है बैक्टीरिया एंडोकार्डाइटिस भी कहते हैं, और ये इन्फेक्शन काज करता है बैक्टीरिया। और जब ये एंटर होता है तो ये ब्लड स्ट्रीम के में जो है ना एंटर होंगे, तो ये जो हार्ट की लाइनिंग्स होती है ना उनके ऊपर सेटल होने की कोशिश करता है, और ये सेटल भी हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ जाके बड़ी मुलायम से होती है ना, इसलिए बड़े मज़े से रहता है वहाँ, ठीक है। उसके बाद जो आ गया इन्फेंट विद कंजेनिटल हार्ट फेलियर मेडिकल मैनेजमेंट रिकमेंडेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई सक्सेस रेट। मेडिकली मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो पेशेंट मैंने हॉस्पिटल में जब पिट्स मेडिकल आईसीयू में मैं ड्यूटी करती थी तो वहाँ मोस्ट ऑफ द पेशेंट इसी तरह के ही आते थे कार्डियक के साथ, तो उनको जो है मोस्टली मैंने देखा उनके जो होल होते थे ना वो क्लोज नहीं हुए आते थे, और वो मोस्टली मेडिसिन के साथ ही पेशेंट जो है वो बाजुकात 2-2 हफ्ते के बाद डिस्चार्ज होकर चले जाते थे, फिर 2 हफ्ते के बाद आ जाते थे, फिर उनको साइनोसिस वगैरह का प्रॉब्लम शुरू हो जाता था, तो वो दोबारा से फिर उनको एडमिट करते थे। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता मैं देखा कि पेशेंट जो है 2 ईयर्स तक जो है वो खुद ब खुद उसका जो है प्रॉब्लम ये शाम तक सॉल्व हो जाती है। इसलिए इसमें सर्जरी जो है ना इतनी रिकमेंड नहीं की जाती, वेट किया जाता है कि हो सकता है स्पॉन्टेनियसली ये खुद ब खुद ही सॉल्व हो जाए प्रॉब्लम। मेडिकली प्रॉब्लम में जो है अब उसको देते हैं हम फ्रोजन 1 मिलीग्राम पर केजी बीडी। बीडी क्या पता है आपको?
बीडी क्या होता है, कोई बताएगा? ये तो पता होना चाहिए क्योंकि क्लिनिकल पे जाते हैं। क्या मतलब है बीडी का? जी नबीला, क्या मतलब है बीडी का? गुड। फैज़ा ने बताया बीडी का मतलब है 2 टाइम्स है। इसको कहते हैं ट्वाइस अ डे, ठीक है? ये सुबह शाम देते हैं या 3 टू 3 देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स अ डे है, ठीक है? उसके बाद डाइजोक्सिन देते हैं। डाइजोक्सिन की टैबलेट या डाइजोक्सिन का इंजेक्शन देखा आप लोगों ने? इसमें जो है ये 5 माइक्रोग्राम देते हैं हम इसको डाइजोक्सिन। और डाइजोक्सिन की एक टैबलेट को जब पेशेंट को देना होता है ना, तो उसको समझ नहीं आ रही होती कि हम इसकी जो है वो किस तरह कंट्रीब्यूशन करें टैबलेट की अकॉर्डिंग टू डोज। मीन अगर 5 माइक्रोग्राम है तो हम कैसे देंगे? लेकिन कभी आप देखना, मैं तो क्या करती होती थी, उसके अंदर ना डाइजोक्सिन की टैबलेट के अंदर एवरीडे लेके ना, तो उसको उसके अंदर पीस के, तो उसकी जितनी हमने मीन के एक टैबलेट अगर फर्ज करो 20 माइक्रोग्राम की है और 5 हमने ग्राम देना है ना, तो उसकी 4 जो थी ना, वो छोटी छोटी पुड़िया सी बना देती थी पेशेंट को कि वो ट्वाइस टाइम, फिर वो एक पुड़ी को एक टाइम में हम दे देते थे, क्योंकि उसको वैसे तो वो छोटी सी होती है टैबलेट डाइजोक्सिन की, अगर किसी ने देखा हो तो उसको फिर इस तरह मीन करना, तोड़ना और उसका पाउडर बना के फिर उसको अलग-अलग पुड़ियों में करना, वो सारी कागज़ के साथ ही लग जाती थी। फिर हम उसमें एवरीडे मिक्स करके थोड़ा-सा, तो फिर उसकी इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पोटेशियम क्लोराइड 1 ml पर केजी बीडी। पोटेशियम हम ज़्यादा मिकदार में कभी भी पेशेंट को, कार्डियल पेशेंट को नहीं देते, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को मारने का इरादा हो ना, तो उसका एक पोटेशियम का एम्पूल जो है ना, उसको पिला दो या उसको आईवी दे दो। सेकंड मोमेंट भी पेशेंट जो है वो ऊपर हो गया, राइट? उसके बाद इसमें एंटीबायोटिक देते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल रखने के लिए। एपीएल सेप्टल डिफेक्ट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, ये सर्जिकल कैथेटराइजेशन भी होती है, लेबोरेटरी क्लोजर भी होता है। इनके ये कैथ लैब में पेशेंट को ले जाके, तो वहाँ पे भी इसकी क्लोजिंग होती है वो डिवाइसेस वगैरह के थ्रू, और ये क्लोजर इज परफॉर्म्ड इलेक्टिवली बिटवीन, ये वैसे ही मैंने आप लोगों को बताया कि 2 to 4 ईयर्स 5 ईयर्स के दौरान जो है ना क्लोज हो जाता है। और लेकिन 2 ईयर्स के बाद मोस्टली अगर ना क्लोज हो तो फिर सर्जरी रिकमेंड की जाती है ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जाए। सर्जिकल correction is done earlier in children with congenital heart failure और significant pulmonary hypertension। mortality rate जो है इसका 1% है। अब क्या आ गया नॉन सर्जिकल क्लोजर ऑफ ASD। नॉन सर्जिकल क्लोजर पता है आप लोगों को कि ये क्या होता है? नॉन सर्जिकल क्लोजर एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना, और एक है नॉन सर्जिकल क्लोजर। उसमें ये है कि उसमें डिवाइसेस होती हैं, ये देखो ज़रा, कैथेटर डिलीवर्ड क्लोजर डिवाइसेस हैव बिकम अ प्रेफर्ड मेथड। इसको मोस्ट लोग, ऑलमोस्ट बाहर के लोग तो प्रेफर ही इसी को ही करते हैं। ये डिवाइसेस के नेम है विंग्स डिवाइसेस डिफरेंट, बट हमारे मैंने देखा है कि हमारे जो मोस्टली जो यूज़ होते हैं ना इंट्रासर ASD कोलिजन डिवाइस है, ये ज़्यादा यूज़ होती है। और ये जो डिवाइस होती है ना, ये कुछ डिवाइसेस डायरेक्टली ओसोफेजियल के थ्रू लेके जाते हैं हार्ट में, बैक साइड से उसको फील करते हैं हार्ट को बैक से, और उसके साथ साथ इकोकार्डियोग्राफी चल रही होती है, तो उसको स्टडी करने के लिए डिवाइस जो है वो डायरेक्टली हार्ट के अंदर इंसर्ट की जाती है। इससे ये होता है, आगे मैं इसको दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसका फ़ायदा क्या होता है। यूज़ ऑफ द क्लोजर डिवाइस में इंडिकेटेड टू
close a secundum ASD measuring 5 mm more in diameter. उसके बाद आ गया significant left to right shunt with clinical evidence of right ventricle volume overloaded. There must be enough rim होता है of the septal tissue around the defect for appropriate. इसको जस्ट आप लोगों को सिर्फ पढ़ लीजिएगा, आप लोगों को सिर्फ इसका पता होना चाहिए, ये इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। ये मैंने स्लाइड इस वजह से डाली थी। द टाइमली ऑफ द डिवाइस बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्लोजर इट इज नॉट यूज्ड इन इन्फेंसी अनलेस पेशेंट इज सिम्पटोमेटिक विद द हार्ट फेलियर, राइट। उसको जस्ट पढ़ लेना बस। ये हैं डिवाइसेस, ये ऐसे ही सो सिंपल होती हैं जैसे ये नज़र आ रही हैं, ये इनके डिफरेंट नेम्स हैं। अच्छा, ये मैं जो बता रही थी आप लोगों को कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसमें तो एक तो ये है कि कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ कार्डियो पल्मोनरी बाईपास है, मेन के बाईपास नहीं करना पड़ता, ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। अवॉइडेंस ऑफ पेन एंड रेजिडुअल थायरोइड स्कार, एक तो पेन नहीं होती पेशेंट को, डेफिनेट ओपन हार्ट सर्जरी होगी तो पेशेंट को पेन होगी। उसके अलावा पेन के अलावा ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो चेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा स्कार बन जाता है, ठीक है। तो इससे जो है ये लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटल स्टे होता है। इसमें जो हम ये डिवाइस की बात कर रहे हैं, हमके इनका क्या फ़ायदा होता है। ये लेस देन 24 आवर्स हॉस्पिटल स्टे होता है, रैपिड रिकवरी होती है। उसके बाद आ गया ऑल दिस डिवाइसेस आर एसोसिएटेड विद द हाई रेट ऑफ स्मॉल रेजिडुअल लीक। इनके छोटा सा लीकेज करते हैं हम हार्ट के अंदर, ऊपर से तो वो भी नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन हार्ट के अंदर जब स्मॉल सा लीकेज होती है उसकी, ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद पोस्ट डिवाइसेस क्लोजर फॉलोअप जो है उसमें पेशेंट जो है आर एडमिनिस्ट्रेट एस्पिरिन 81 मिलीग्राम फॉर 6 मंथ के लिए देते हैं। उसके बाद जो है पोस्ट प्रोसीजर इको स्टडी करते हैं, इकोग्राफी करते हैं उसकी। फिर आ गया सर्जिकल क्लोजर इंडिकेशन, सर्जिकल क्लोजर इंडिकेशन एंड टाइमिंग्स। मैं आती हूँ, चली जाती। Indications and timings. Left to right shunt with pulmonary to systematic blood flow ratio. The surgery is usually delayed until 2 to 4 years of age because the possibility of spontaneous closure है, क्योंकि हम वेट करते हैं 2 years तक, 2 से 4 years तक, अदरवाइज हम जो है वो सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं ताकि फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। सर्जरी इज परफॉर्म ड्यूरिंग इन्फेंसी इफ congenital heart failure does not respond to medical management, right? समझ आ रही है ना आप लोगों को? Infant with associated bronchopulmonary dysplasia and the device closure is not considered appropriate. Surgery is performed during infancy. High pulmonary vascular resistance may be a contribution of surgery. ये जो सर्जिकल सारी मेडिकल ट्रीटमेंट तक ठीक है, कि मेडिकल का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सर्जरी की मैंने इस वजह से डाली है कि आप लोग इसको पढ़ लो, बुक नहीं भी पढ़ोगे तो एटलीस्ट पीपीटी से पढ़ोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में अंदाज़ा होगा कि कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर कभी कोई पूछ ही लेता है कि पेशेंट के लिए कौन कौन सी मीन के ट्रीटमेंट हो सकती हैं, सर्जिकल हो सकती हैं, मेडिकल हो सकती हैं, और अगर सर्जरी नहीं करनी तो कोई पूछ भी सकता है। आप लोगों को पता हो। नहीं मुबीन, नेक्स्ट लेक्चर मेरा नहीं है, मेरा 10 से 11 ही था, ठीक है। अब जल्दी से हम आते हैं, ये है
یہ جو سرجری کرتے ہیں نا ہم وہ شنٹ کو کلوز کرنے کے لیے یہ جو ہے اس کو بھی ڈیوائس ہی بولتے ہیں، یہ ڈال کے پھر اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے جب ہم اس کو اس کے ساتھ اسٹچ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس میں کمپلیکیشن جو ہے کمپلیکیشن کیا ہوگی، کمپلیکیشن ہے پلمونری ہائپرٹینشن ہوگی، اوور سرکولیشن ہوگی، ہارٹ فیلر ہوگا، ایٹریل ریتھمیا ہوگا، اسٹروک ہوگا۔ اسٹروک کے بارے میں آپ نے کچھ پتا ہے آپ لوگوں کو کچھ؟ یہ ایک اسپیشل ایک ڈیزیز ہے، اسٹروک کیوں ہوتا ہے؟ ہارٹ موسٹلی ہارٹ کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، obstruction کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آگے نرسنگ مینجمنٹ کیری آؤٹ انویسٹیگیشن مانیٹر کرتے ہیں۔ اس نرسنگ میں سارے میں اگر جتنے پوائنٹس یہ آپ لوگ پڑھ لو گے، مین انٹیک آؤٹ پٹ چارٹ ہے، وائٹل سائن ہے، ٹائملی ایڈمنسٹر ہے، اس کی نرسنگ مینجمنٹ آپ لوگوں نے اچھے سے کرنی ہے۔ پرووائڈ ریسٹ انکریز اوٹو ایڈمنسٹریشن ہے، سائیکولوجی سپورٹ ہے، پریونشن ہے، نرسنگ مینجمنٹ اکثر اوقات ہے آ بھی جاتی ہے ریسپٹل ڈیفیکٹ کی، رائٹ۔ اور اس میں خاص ایک پوائنٹ ہے یہ مانیٹر پوٹاشیم لیول، ٹھیک ہے، اس کو نہیں آپ نے بھولنا، رائٹ۔ چلو اب کو 5 منٹ رہ گئے تو جلدی سے مجھے اٹینڈنس لگواؤ۔ کل ہم جو ہے وینٹیکل سبڈل ڈیفیکٹ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جلدی جلدی جو ایک دفعہ پریزنٹ بول دے نا وہ دوسری دفعہ نہ پھر بولے۔ اقصی عارف، عارف ہے، اور کون ہے؟ اچھا رمشا ہے۔ رمشا ہے، مریم نایاب، ہے، مریم اختر بھی ہے، مریم طاہر، مریم مختار، کائنات ہے، اور کون ہے؟ فائزہ، یہ فائزہ منیر ہے نا؟ قرتلان ہے، اور آمنہ ہے، آمنہ، انیزہ، ہمارا، نبیلہ ریاض، اپنا نا پورا پورا نیم لکھا کرو، ٹھیک ہے۔ نمرہ جاوید ہے یا نمرہ خالد ہے؟ زلفا بھی آگے رول کا لگوانے کے لیے ہے نا؟ زلفا پہلے تو نہیں آپ پریزنٹ تھے۔
اوکے کلاس، کل ملیں گے انشاءاللہ. آپ کی کلاس ہے؟ آپ کی ہے؟ بس ابھی کر رہی ہوں.